So we have to write this one: diffusion, osmosis, and what I say is this diffusion, osmosis, and active transport. You have to write for this. For I think in chapter number 1, long answer type is there. Am I right? Define 3 processes. Yes, miss. Fine. So now the doubt is clear, beta? Yes, miss. Fine. And fine. In this chapter, what are your doubts? I think MCQs and all that we have discussed. No, miss. We have not discussed the question answer regarding the chapter 2. Miss, we have We discussed discussed long answers. What we have discussed, beta? Miss, we have discussed long answer questions. Only long answers we have discussed. Okay, fine. So let's see from starting only. MCQs, you have any doubts? No, miss. Okay, fine. Short answers 1 to 4, any doubts? No, miss. No, miss. Nothing. Then fill in the blanks. No, miss. Nothing. So in long answer you have doubts, beta? Yes, ma'am. हाँ, पूछो. Ma'am, in question number 4, where it is written, explain the structure of a germinating pollen grain with the help of a label diagram. So we need to write it in our own word or with the help of the book. See, first of all, germinating pollen grain, if you want to write. Yes. So, if you have to write regarding the germination, na? So I think I must have told you that it is given on page number 24 that one block is there in that germination is given. Yes, miss. That Yes, is miss. okay. So that is a basic definition for the germination, and you can use your own statements also for explanation. Okay, miss. If you wish to, that if you think that you can explain it in much more better way, so you can use. But this particular definition that is given in your book, you have to follow it. Understood? Okay, miss. Okay, fine. Any other doubt? No, miss. Nothing. Siddharth, you have any doubts regarding this exercise, beta? No, miss. Okay, fine. So आप नोटबुक में हो गया ना एक्सरसाइज कंप्लीट बेटा? Yes, miss. Good. So let's begin with the third chapter. Acha, before beginning, just let me know, you have unit test in your schools. Yes, miss. So what are the chapters for your test? Syllabus is being provided to you or not? Yes, Yes, miss. miss. Midterm syllabus. Okay, Siddharth, what you are saying, beta? Be little bit closer to your mic. I cannot hear your voice, Siddharth. Yes, miss. Midterm syllabus is given. Midterm syllabus. Okay, what are the chapters in that for bio? Okay, if you don't have it right now with you, don't worry, just share it in the group. Okay, Miss, Miss, I I have. shared it. you have already given it.
Yes. Okay, fine. Miss, I got it. Yeah, say it. Transporting plants, Okay, reproduction in plants, okay, endocrine system, endocrine system. and circulatory system. Circulatory system also. Okay, fine. And when will be your midterm exams will be? Miss, it is not informed. It is not being informed. Okay. Okay, no worries. We will begin with reproduction in humans first. Okay. So it's not a big chapter. You will complete it soon. And we will start with this, then we will be following the next one. Miss, reproduction in humans is coming in final term. It is coming in final term. Okay. And Shweta, yours Miss, final term syllabus we haven't given. We have got midterm syllabus, and that reproduction in human is not there. is not there. Yes, miss. Okay. So you are also having the same chapters like Siddharth? No, miss. I have transport in plants, reproduction in plants, and ecosystem. Oh, great. Hmm. And you have been provided with the dates from the school? Miss, I need to check it. Okay. Means if not exact One date, is given. if not exact dates, then month or something like that is given? Miss, I have the screenshot. I need to check that. Okay. Miss, unit 1 it is given. Miss, second 10 biology exam. What beta, what you are saying? Miss, unit 1 timetable it is given. Unit 1 timetable it is given. What is the month which is given to you? 5th July biology exam. In July. Yes, Miss, 5th July. Okay, so we have lot of in between, you have the time. So no worries. We will not be panicked. Shweta, yours also beta? I have 12th July. Okay, fine. So we have June in between, right? Yes, miss. Okay, no worries. So we will begin with reproduction in humans today, first of all. We will do this one. See this. First of all, in this chapter, we are concentrating basically on humans only, बेटा ठीक है हम सिर्फ और सिर्फ humans पे ही concentrate करने वाले हैं बट एक छोटा सा introduction है थोड़ा सा animals का that part we will be seeing first of all. So asexual in animals जो है हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है reproduction in animals में that you have different methods. One of them is fission. फिजन दो टाइप के होते हैं बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन्स बाइनरी मतलब टू सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड मतलब एक सेल से पहले 2 सेल्स बनेंगे देन 2 इंटू 2 से 4 4 से 8 8 से 16 देन 32 देन 64 दिस इज हाउ 108 sorry 128 that is how 128 that is how it is being multiplied. Am I right?
Yes, miss. ठीक है, तो वो बाइनरी फिजन है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू होता है। क्या होता है? 2. टू। टू टू के मल्टीपल्स पे चलता है। और मल्टीपल फिजन मतलब ढेर सारे मल्टीप्लाई होना इन नंबर। इसमें नंबर कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है मल्टीपल फिजन्स में। ठीक है, सो दैट पार्ट यू शुड बी कंसिडरिंग। सो दिस इज, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कैसे बाइनरी फिजन हो रहा है और कैसे। ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके बुक में, तो ये बस आप एक बार देख लो। दिस इज हाउ द बाइनरी फिजन अकर। और ये देखो मल्टीपल फिजन, बहुत सारे बन गए सेल के अंदर, फिर वो सब बर्स्ट होके बाहर निकल आया। समझ में? Yes, miss. ओके, नाउ सी दिस नेक्स्ट वन, बडिंग। हाइड्रा बडिंग जो है क्लास 7th में देखा होगा आपने, देखा था ना? सी देखो, हाइड्रा में से उसकी बॉडी में से ही एक नया हाइड्रा फॉर्म होता है बर्ड जैसे। फिर उसके बाद वो डिटैच हो जाता है और वो नया हाइड्रा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यू बडिंग। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. ठीक है। अच्छा, तो एक काम करो श्वेता, फर्स्ट यू हैव टू डू इज, ठीक है, फाइन, ए चैप्टर नंबर 3 का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है ना बेटा, वहां से पढ़ो तो फिजन से रीड करो उसको। Okay, miss. Fission. This is the most common method of reproduction in single-celled organisms. Example, amoeba, paramecium, etc. In amoeba, it results in the division of the parent amoeba into two daughter amoeba. First, the nucleus divides into two, followed by the division of the cytoplasm, and then the two offspring separate and live as new individuals. ओके, तो फिजन में क्या होगा? अमीबा और पैरामीशियम में, अमीबा में इन सब में, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो नए सेल्स बन जाएंगे और दो दो करके न्यू न्यू सेल्स बनते रहेंगे। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस सिद्धार्थ और श्वेता? No, miss. सिद्धार्थ? ओके फाइन। सो नेक्स्ट बडिंग रीड करो बेटा। बडिंग, हाँ बडिंग रीड करो बेटा। Budding is a process in which buds grow on the outside of the parent body. These buds detach themselves when they are big enough for independent existence. Budding is a common method of reproduction in Hydra. ओके, सो हाइड्रा में ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। एनी डाउट्स इन दीज वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ? गुड। अब No, miss. नेक्स्ट वन, रीजनरेशन। सिद्धार्थ रीड। Animals like hydra and starfish have a great power to regrow the missing or lost parts of their body. This process of generating lost parts is called regeneration. Regeneration can also take place for reproductive purposes. For example, if we cut hydra transversely into 2 to 3 pieces, each piece will regenerate and give rise to a new individual. Same is the case with the flatworm, planaria. If it is cut into 5 to 6 pieces, then each piece will develop into young worm. ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीनों दिया हुआ है आपके बुक के अकॉर्डिंगली, स्टारफिश, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। अगर आप उसको कट कर दोगे ना बेटा, तो जो कट है, जो पार्ट लूज हो गया है, वो अपने आप उसको ग्रो करके नया वाला ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। पिक्चर से समझ आ रहा है? Yes, miss. Okay, that's a good thing. So this is what a little bit of introduction regarding the animals.
who are arising that what we say asexual, ठीक है, ये asexual reproduction है. Then further अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करेंगे. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पहले स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टडी रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन वी विल स्टडी द, अच्छा पहले आपकी बुक में फीमेल है तो हम चलो फीमेल पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल स्टडी फर्स्ट. तो उसके लिए सिद्धार्थ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रीड करो तो बेटा पहले. Most animals reproduce sexually. In sexual reproduction, the male and female produce special types of reproductive cells. Males produce the male gametes or sperm cells, and the females produce the female gametes or the egg cell, ova. When the sperm fuses with the ovum, fertilization occurs. After the fertilization of an ovum by a sperm, a cell called the zygote is formed. The zygote grows by cell division and produces an embryo. The embryo finally grows to become a new individual. ठीक है. तो अभी हम जो पूरा सिस्टम पढ़ेंगे ना बेटा, तो फीमेल और मेल का, तो हमें ये समझना है कि जो फीमेल में से जो स्पेशल सेल होता है उसको हम ओवा बोलते हैं. तो हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी की चीज समझेंगे, ठीक है. सो सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम? Yes, miss. ओके फाइन, ये आपके बुक में भी है, ठीक है. तो उस नहीं इसमें समझ में आए तो बुक में भी देखते रहना. सी दिस, यू हैव ओवरी ओवरियन. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ओवरीज होने चाहिए. एक इधर होगा, एक इधर होगा ओवरीज, ठीक है. ये ओवरी के अंदर स्पेशल एग्स होते हैं. क्या होते हैं? एग्स होते हैं. जस्ट सी दिस, इसके अंदर ऐसे एग्स होते हैं ढेर सारे. You have big amount number of egg in this. देखो ये एग्स है, ये इस ओवरी में रहते हैं. अब ये जो एग्स है ये ओवरी में रहते हैं, ये किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? ये आप एक ट्यूब देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये ट्यूब, ये ट्यूब दिखाई दे रही है आपको बेटा? Yes, miss. इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब. इसे क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब. या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओविडक्ट. इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? Yes, miss. ठीक है. एंड ये दोनों के दोनों जो ट्यूब्स हैं, ये दोनों आकर देखो एक ही जगह पे आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूटरस. इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस. यूटरस जो प्लेस है, इसी जगह पर बेबी भी रहता है, ठीक है. अंडरस्टूड? ये मदर्स बॉडी में होता है. तो यूटरस जो जगह है, यहाँ पर ये दोनों फेलोपियन ट्यूब्स आकर एंड होती हैं. और ये यूटरस का जो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं सर्विक्स. इसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स. और ये होता है वजाइना. अंडरस्टूड? वजाइना जो बाहर से आपको क्लियरली फीमेल जो सिस्टम में दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड वजाइना. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. ठीक है. तो एक्चुअली में जब आप डॉक्टर बनोगे ना बेटा, तो आपको ये पता चलेगा कि जो सर्विक्स होता है वो अंदर होता है, वजाइना जो होता है वो बाहर होता है. सर्विक्स के और अंदर होता है यूट्रस, और ये होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स, और ये होते हैं ओवरीज. ओवरीज के अंदर होते हैं बहुत सारे एग्स, ओवा. इनको हम एग्स भी बोल सकते हैं और इनको हम ओवा भी बोल सकते हैं. इनको एग्स भी बोल सकते हो, इनको ओवा भी बोल सकते हो. ये चीज समझ में आई बेटा?
Yes, miss. ठीक है श्वेता, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें फीमेल वाला पार्ट रीड करो, फिर मैं और समझाती हूँ। Okay, miss. The eggs are produced in the ovaries. The ovaries are two whitish oval bodies lying within the lower half of the abdomen, one on each other side of the uterus. The function of the ovary is to produce eggs. Only one egg is produced by an ovary alternatively every month. वेट, ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली 2 ओवरीज होनी चाहिए, और वो कहाँ होती है, एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब आपका जो स्टमक के नीचे जो एरिया है वहां पर इस सिस्टम की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरी है, ओवरी के अंदर एग्स है, इसका काम ही है एग्स बनाना ओवरी का। ठीक है, और ये वाइटिश ओवल कलर की छोटी छोटी बैग जैसी होती है। Now see this, when you have this one, these ovaries will produce eggs. तो सब eggs एक साथ नहीं प्रोड्यूस होते हैं बेटा, सारे eggs जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होते हैं। ऑल्टरनेटिवली मतलब अगर सपोज जनवरी मंथ में इसमें से एक एग रिलीज हुआ है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट मंथ फेब में जो एग रिलीज होगा वो कहाँ से होगा, ये वाली ओवरी से। तब ये वाली ओवरी कोई काम नहीं करेगी। फिर अभी फेब में इसने काम किया तो ये रेस्ट पे है, अब ये मार्च में रिलीज करेगी। जब ये मार्च में ये एग रिलीज करेगी तब ये वाली ओवरी कोई काम नहीं करेगी। ये कब करेगी, अब अप्रैल में। तो ऑल्टरनेटिवली ये अपने अपने एग्स को रिलीज करते हैं। ये चीज समझ में आया बेटा? Yes, miss. गुड। अच्छा नेक्स्ट श्वेता आगे पढ़ो बेटा। A pair of narrow, muscular, long ducts extend from each ovary to the upper part of the uterus. These are called the oviducts or fallopian tubes. The mouth of these oviducts is expanded to form a funnel-shaped structure. It is through this that the egg enters the uterus when it is released by the ovary. ओके फाइन। सो 2 लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो ओवरी के, सपोज इफ दिस इज अ ओवरी, ये ओवरी है, तो इसके ऊपर ये ट्यूब जो है वो फनल की तरह स्प्रेड रहती है। और क्या होता है, जैसे ही एग निकलता है तो ये उसको कैच कर लेती है अपने अंदर, और इस ट्यूब के थ्रू वो एग जो है वो आगे बढ़ता है। ये चीज समझ में आई बेटा? Yes, miss. ओके सिद्धार्थ, क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, miss. ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज, रीड करो आगे बेटा। The uterus is a hollow, inverted, pear-shaped muscular organ found in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. The embryo grows and develops in the uterus. ओके अब देखो, जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है वो पेयर शेप्ड का होता है। ऐसा लगता है कि उल्टा पेयर, वो पेयर रख दिया हो वैसा होता है। अब ये जो यूट्रस है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में। पेल्विक मतलब कमर, वेस्ट, जो आपकी जो वेस्ट होती है उसके पास, पेल्विक मतलब वेस्ट रीजन, वहां पर या ये पर्टिकुलर सिस्टम यूट्रस प्रेजेंट होता है। और ये किसके बीच में होता है, आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके, और पीछे होता है इसके रेक्टम। आया समझ में? Yes, miss. ठीक है, इसके ऊपर अगर देखोगे तो आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखेगा, और इसके पीछे देखोगे तो आपको रेक्टम दिखेगा मदर का। आया समझ में? इज इट, दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Miss, what is rectum? क्या बेटा? What is rectum? व्हाट इज रेक्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा बेटा? Yes, miss. स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है तो रेक्टम होता है, फिर एनस होता है। Yes, miss. सिद्धार्थ याद आया? सिद्धार्थ Yes, miss. याद आया बेटा? Yes,
मैंने नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा है, ओके फाइन। सी, रेक्टम वो रीजन है जहां पर से आपकी बॉडी सॉलिड वेस्ट को निकालती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मिस। ओके फाइन। अच्छा आगे पढ़ो श्वेता। The uterus opens to the outside through a long muscular tube called vagina, situated between the rectum and the urethra. The vagina receives the male's penis during copulation and also serves as birth canal. The urethral opening is seen above the vaginal opening in the region of the vulva. ओके ठीक है। नाउ सी दिस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, द यूट्रस ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ये यूट्रस जो है वो ओपन कैसे हो रहा है? लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जैसी रीजन है जिसको हम वजाइना बोलेंगे, उसके थ्रू ओपन हो रहा है। ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन रेक्टम एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब जिससे यूरिन पास होता है वो यूरेथ्रा। ठीक है, और पीछे होता है इसके रेक्टम जिससे सॉलिड वेस्ट निकलता है। ठीक है, नाउ द वजाइना रिसीव्स द मेल पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड आल्सो सर्व एज अ बर्थ कैनाल। इस रीजन से ही स्पर्म एंटर होता है और उसी वजह से फिर बेबी की फॉर्मेशन होती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा? Miss, can you please explain it once more? ओके फाइन। ये जो यूट्रस है वो देखो ओपन किसके थ्रू हो रहा है? वजाइना के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब इस जगह के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर मतलब, यूरिनरी ब्लैडर मतलब जिसके अंदर यूरिन भरता है वो है। तो इसके ऊपर एक और ट्यूब होगा, यहाँ से इस रीजन पे इसके ऊपर एक और ट्यूब होगा जो यूरिन को बाहर निकालेगा, जिसको हम यूरेथ्रा बोलेंगे। ये चीज समझ में आ गई? Yes, miss. ठीक है, और इसके पीछे जो रेक्टम है वो क्या करता है? वो जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और सब कुछ हो जाता है तो जो वेस्ट बचता है, सॉलिड वेस्ट, उसको बाहर रिमूव करने का काम कौन करवाता है? रेक्टम। अंडरस्टूड दिस पार्ट ना? Yes, miss. ठीक है, एंड ओके ठीक है, एंड कट। ठीक है, तो ऊपर से तो यूरिन, ऊपर एक इसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये है, ये अगर वजाइना है, यूट्रस और वजाइना है, इसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होगा जो यूरिन पास करने में हेल्प करता है। और नीचे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम जो सॉलिड वेस्ट रिमूव करता है। और यहाँ से जो ये जो ओपनिंग है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ बेबी। यहाँ से बेबी रिलीज होता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. ठीक है, दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिद्धार्थ समझ आया बेटा? सिद्धार्थ क्लियर हुआ? यस मिस। अच्छा, आयुष यू हैव जॉइंड लेट। यस मैम। आ रहा है समझ में? यस मैम। गुड। मिस यस मैम। बेटा, हाँ हाँ बोलो। मैम सिलेबस में हम लोग का ये चैप्टर नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। सिद्धार्थ आप बताओ। वजाइना के थ्रू बेबी डिलीवर होता है। यस, बेबी विल कम, क्योंकि बेबी जो है वो यूट्रस में रहता है। जब मदर्स की बॉडी में बेबी रहता है तो वो यूट्रस में रहता है और वो वजाइना के थ्रू बाहर आता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मिस। ठीक है, तो अच्छा अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इसके आगे। पहले मेल और फीमेल सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होती है बेबी की। ठीक है, सो दैट पार्ट वी विल स्टडी। सिद्धार्थ रीड करना बेटा।
रीड करो। Male. हाँ। Sperms are produced in the testes. हम्म। A pair of testes lie outside the abdominal cavity in a sac called the scrotum. In such an arrangement, the testes are at a temperature which is 2 to 3 degrees Celsius lower than that of the body. This is the most suitable temperature for sperm production and development. The testes वेट, देखो ये रीजन देख रहे हो आप, कैन यू सी दिस रीजन? Yes, miss. दिस इज टेस्टिस, और वो एक बाहर स्किनी बैग में होता है, स्किन जो होती है वो बाहर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्रॉटम। ऐसे दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। यू हैव टू टेस्टिस एंड दैट इज लाइंग इन द स्किन कॉल्ड स्किन, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। अच्छा, अब ये जो स्क्रॉटम है बेटा, ये टेस्टिस को बाहर बॉडी के रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि टेस्टिस का टेम्परेचर पूरी बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो उसी टाइम पर स्पर्म बना सकता है, अदरवाइज वो स्पर्म को नहीं बना पाएगा अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देगा तो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. Okay. Yes, ma'am. So that is called testis and the skin is called scrotum. Okay. Now, अब आगे पढ़ो सिद्धार्थ। The testes consist of a mass of sperm producing tubes. These tubes join to form ducts leading to the highly coiled epididymis found on the upper side of the testes. This in turn leads into a muscular sperm duct. The two sperm ducts, one from each testis, open into the urethra just below the urinary bladder. ओके फाइन। अब देखो, ये टेस्टिस जो होता है, इसके अंदर ही सारे स्पर्म्स बनते हैं। जैसे ओवरी में एग बनता है, वैसे ही इसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। आया समझ में? ठीक है। नाउ ये जो ये पर्टिकुलर स्पर्म है, वो कैसे बाहर आएंगे? तो सबसे पहले इसके पास एक मोटा सा ट्यूब होता है टेस्टिस के पास, उसको हम बोलते हैं एपिडिडिमिस। उसको क्या बोलते हैं? एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस में से सारे जो ये स्पर्म है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस से सारे जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ से निकलने के बाद आगे चलते हैं, एंड ये जो स्पर्म डक्ट्स होती हैं वो आगे चल के मिल के एक ही हो जाती हैं। अंडरस्टूड दिस? इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, miss. ठीक है, देखो ये वाले टेस्टिस से भी ये बड़ा सा ट्यूब निकलेगा, और वैसा ही उस तरफ से दूसरा टेस्टिस है, उससे भी ऐसे ही ट्यूब निकलेगा। बट लास्ट में वो दोनों फ्यूज हो जाती है, और वो क्या बन जाती है? स्पर्म डक्ट। क्या बन जाती है? ठीक है, और ये दोनों फ्यूज होकर किससे जुड़ जाती है? यूरेथ्रा से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा से। अच्छा, जब अब ध्यान दो, यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली ट्यूब है। जो ब्लैडर होता है ना, जो यूरिन को स्टोर करता है, उसमें से बाहर आने वाली ट्यूब को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये स्पर्म डक्ट जाके कहाँ पर मिल जाती है?
यूरेथ्रा में मिल जाती है। अच्छा, फीमेल वाला हमने पढ़ा ना, फीमेल में यूरिन के लिए पैसेज अलग है, सॉलिड वेस्ट का पैसेज अलग है, और बेबी बर्थ का पैसेज अलग है, देखा ना आपने? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए एक ही जैसा पैसेज है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, miss. ओके, फाइन। देन आगे पढ़ो तो बेटा। The seminal vesicles are a pair of lobulated glands, each opening into the corresponding sperm duct just before they unite with the urethra. The seminal vesicles produce a secretion which serves as a medium for the transportation of the sperms. The mixture of this fluid and the sperms produce a milky fluid called the semen. At the base of the urinary bladder, encircling the urethra, is the prostate gland. This pours an alkaline secretion into the semen as it passes through the urethra. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब ये सारे सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स हैं। एक है सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या काम करता है? वो ये एक फ्लूइड बनाता है, एक लिक्विड जैसी चीज बनाता है, स्टिकी स्टिकी, सो दैट स्पर्म क्या है कि उसके अंदर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्टिकी स्टिकी मीडियम बनाता है जो थोड़ा सा मिल्की इन कलर होता है। दैट इज हाउ इट इज बीइंग देयर। एंड एट द बेस ऑफ दिस, ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो है वो क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये जो टेस्टिस जो यहाँ आ रही है, ठीक है, वो ही आगे जाकर यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. ओके, नाउ ये जो सेमिनल वेसिकल है उसने जो लिक्विड दिया है तो वो स्पर्म को क्या कर देगी? प्रोवाइड सेमेन। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? सेमेन प्रोवाइड करेगी। वाइल दिस वन Hello. Yes. Yes, I cannot hear you. हेलो हेलो, Yes, miss. सुनाई दिया बेटा? के वीडियो फ्रीज हो गया था? Freeze हो गया था. फ्रीज हो गया था, अच्छा सही। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना बेटा, उसके आसपास से पूरा ये स्पर्म डक्ट ऐसे ट्रैवल करेगा और उसमें सेमिनल वेसिकल जो है वो अपना लिक्विड रिलीज करेगा। जब वो रिलीज करता है तो वो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर ये ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? वो इस पूरे फ्लूइड को अल्कलाइन बना देता है, बेसिक बना देता है इन नेचर। वो तो समझते हैं ना अल्कलाइन बेटा? Yes, miss. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। तो अल्कलाइन बना देता है, और बाद में उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। Copper's glands are two small ovoid glands found below the prostate gland. The secretion of these glands serves as a lubricant. ओके, तो ये जो सब सेक्रीशन रिलीज हुआ
सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से और ये कॉपर्स ग्लैंड में से ये जो भी रिलीज हो रहा है ना बेटा, ये पूरे उस चीज को लुब्रिकेशन देगा। लुब्रिकेशन मतलब आपने जब भी आपके घर में गाड़ी आप चलाते हो तो वो देखा है, उसमें ग्रीस लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन नहीं हो, Yes, miss. है ना, ग्रीसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं ताकि वो चीज आवाज नहीं करे और अच्छे से चले। देखा है सिद्धार्थ? Yes, miss. बस उसी तरीके से ये जो सारी चीजें हैं उसको फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए वरना स्पर्म जो है वो खराब हो जाएंगे, तो उसको पूरा लुब्रिकेशन देता है ये कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, नाउ आगे पढ़ो। द यूरेथ्रा, The urethra passes through the penis and carries either urine or semen. ठीक है, तो ये जो यूरेथ्रा है यहाँ से पास ऑन हो रही है पेनिस के थ्रू। ठीक है, देखो ये टेस्टिस भी बॉडी के बाहर है, मतलब स्किन के अंदर है लेकिन बॉडी के बाहर है। यहाँ से ये डक्ट शुरू होती है, पूरी अंदर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाके वापस मुड़ती है और फिर वो पेनिस के साथ फिर से बाहर आती है। ये चीज समझ में आ गई? Yes, miss. ओके, Yes, miss. fine. So this is what you have to understand. Okay, last ये पढ़ो तो semen बेटा। Semen is a mixture of sperms and secretions from seminal vesicles, prostate, and Cooper's gland. It is a milky white fluid. Its average amount is 2 to 3 ml in a single ejaculation and contains 20 lakhs to 40 lakhs sperms. Okay, so 2 to 3 ml, sorry, 2 to 3 ml सेक्रेशन रिलीज होता है, बट उसमें नंबर ऑफ स्पर्म देखो 2 lakhs टू कितना, कितना दिया हुआ है बेटा? It's 40. 40 lakhs। 40 lakhs No, दी, it's 4 crore. 2 crore to 4 crore. 2 crore to 4 crores ऑफ स्पर्म्स आर देयर। देखा नंबर ऑफ स्पर्म कितना सारा है और एग सिर्फ एक ही रिलीज होता है। ये चीज समझ में आया? Yes, miss. Miss. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में और क्या बताया है कि कैसे होगा। ठीक है, सी दिस पार्ट, फर्टिलाइजेशन समझा रही हूँ। नाउ सी दिस, आई एम ड्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो दिस इज कॉल्ड यूट्रस। ये पूरा रीजन यूट्रस है, ठीक है, और ये है ओवरीज। ओवरीज में से रिलीज होगा एग, ठीक है, तो ये एग है वो इस ट्यूब में चला जाएगा, यहां मैं ड्रॉ कर रही हूं वो एग। अब क्या होगा, ये एग जो है वो इसके अंदर, ये फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवा जो एग है वो कैसे फ्यूज होते हैं वो बता रही हूँ। तो जैसे ही ये एग रिलीज हुआ और सपोज अगर उस टाइम पर ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट जो स्पर्म है वो फीमेल्स बॉडी में रिलीज हुए, ठीक है, तो हियर आई एम गोइंग विद दिस,
अगर स्पर्म रिलीज होते हैं तो दी स्पर्म्स, इतने सारे स्पर्म्स हैं, वो सब रन करेंगे, दे विल जस्ट रेस, जैसे रेस होती है ना वैसे रेस करेंगे। तो कुछ जो है वो इधर चले जाएंगे और कुछ जो है वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो वो और कोई यूज का नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई ओवा है ही नहीं, तो वो स्पर्म अपने आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर ये जो यहाँ से क्या होगा, ये एग जो है वो धीरे 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 आगे आ रहा है। ठीक है, तो स्लोली दिस एग विल कम फॉरवर्ड, वो एग जो है वो यहाँ आ जाएगा। जब वो यहाँ आएगा तब तक इनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ ऑल दीज ओनली वन विल रीच टू द एग। आप ये सोचो कितना मतलब मिस्ट्री जैसा है ना, इतने करोड़ में है, लेकिन ओनली वन रीचेज ओवर देयर, वेयर, जहां पर ओवा है। तो जब ओवा और स्पर्म आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे मतलब मिक्स हो जाएंगे। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो अब जो ये पर्टिकुलर चीज है, दोनों मिक्स हो गए, अब वो धीरे धीरे ट्रैवल करके यहाँ पर आके यूट्रस में अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? fertilization. दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक जो हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ इधर वाला, ये सारा का सारा फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, और जब ये अटैचमेंट हुआ इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको क्या बोलते हैं? Implantation. ठीक है, तो ये अटैच हो गया यूट्रस में, इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और जैसे इम्प्लांटेशन हो जाती है, अब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर जो बना है इसको हम बोलते हैं अब जाइगोट। ये क्या हो गया? अटैचमेंट ऑफ जाइगोट। जो अब अटैच हो जाता है तो इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट हो गया तो अब ये जाइगोट जो है वो खुद को डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा और डेवलप करेगा। ओके, सो कैसे हो जाएंगे ये सब के सब? ये जो अटैचमेंट हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, अब फर्दर स्टेज है ग्रोथ। तो ग्रोथ के टाइम पर अब ये सेल खुद को डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. और डिवाइड, स्पर्म्स वेजिना के थ्रू आते हैं। हाँ बेटा, स्पर्म्स वेजिना में आते कैसे हैं? इट इज ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट। यस यस। ओके, सो सी दिस। अब जाइगोट जो है उसके सेल, अभी तक जाइगोट में सिर्फ एक ही सेल है। जो फ्यूजन हो गया स्पर्म और ओवा का, तो एक ही सेल है। अभी जाइगोट कैसा है? ओनली वन सेल, बट नाउ द सेल्स विल डिवाइड। अब जो है यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं, सेल्स विल स्टार्ट डिवाइडिंग। ये जो जाइगोट है एक सेल है, अब वो डिवाइड हो रहा है, ऐसे डिवाइड हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, हर तरीके से उसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद दिस इज कॉल्ड जाइगोट। दिस जाइगोट इज डिवाइडिंग, और डिवाइड होने की वजह से अब ये क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट मतलब क्या होना? ये जाइगोट धीरे धीरे यहाँ के जो कुछ सेल्स हैं वो हेड बनेंगे, यहाँ के कुछ सेल्स हैं जो हैंड्स बनेंगे, यहाँ फिर आपकी नेक बनेगी, आपका स्टमक बनेगा, आपके लेग्स बनेंगे। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। आया समझ में? Yes, miss. और ऐसे बेबी फॉर्म हो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज है
जो आपकी मदर्स बॉडी में होती है, जो मम्मा की बॉडी में, आप भी ऐसे ही फॉर्म हुए हो बेटा, ठीक है। तो जब है ना आप जब भी फॉर्म हुए तो यू वर देयर इनसाइड योर मदर्स बॉडी फॉर हाउ मेनी डेज, यू नो, फॉर 280 डेज, जो क्या बोलते हैं हम 9 मंथ्स बोलते हैं ना। For 9 months, baby lives in the mother's body, or 40 weeks. कुछ भी बोल सकते हो, 40 weeks बोल सकते हो, 9 months बोल सकते हो, 280 days बोल सकते हो, कुछ भी इनमें से राइट है। इस टाइम को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, आप जो बन रहे हो, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। आया समझ में बेटा? Yes, miss. ठीक है। फिर जैसे ही आप बड़े से बेबी बन जाते हो, तब इसमें से ये यूट्रस जो है, जब बेबी बड़ा हो जाता है इसके अंदर, जब पूरी तरह से बन जाता है, सी यहाँ पर ये बेबी जो है वो अब फॉर्म हो गया है, अच्छे से बन गया है। इट इज रेडी टू कम आउट ऑफ मदर्स बॉडी। ठीक है, ये बेबी है मेरा, इतना सुंदर नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा इंसेक्ट जैसा हो। ठीक है, ये बेबी रेडी हो गया। जैसे जैसे ये बेबी बड़ा हो जाएगा, इन 280 डेज, इन 9 मंथ्स और 40 वीक्स, आप कुछ भी बोलो, फिर क्या होगा, ये यूट्रस बोलेगा अब इसको बाहर निकालो। तो यूट्रस क्या करेगा, इसको पुश करेगा धीरे धीरे, और फिर बेबी इससे बाहर आ जाएगा। आ गया समझ में? Yes, miss. That is called birth of a baby, delivery of a baby. Understood this part? Yes, miss. Ayush, clear? Yes, miss. Okay, fine. So ये ही आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, so we finished the chapter over here today. So what you have to do is, आपको क्या करना है, आप पूरा चैप्टर thoroughly रीड करोगे होमवर्क में। क्या करोगे? आज पहले अच्छे से रीडिंग करोगे पूरा चैप्टर। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको फिर से एक रीड करवा रही हूँ, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। आयुष, रीड फर्टिलाइजेशन। Ma'am, 1 minute. Yes, ma'am. Read page number 29, fertilization. During sexual intercourse, the sperms present in the semen are released in the vagina, from where they actively swim upwards with the help of their tail. Out of the millions of sperms released into the vagina, only a few of them are able to reach up to the upper parts of the oviducts. The rest die on the way, are absorbed. If there happen to be an egg in the oviduct, it gets fertilized by just one single sperm. During this fusion, the tail of the sperm is left behind and only the head part, which contains the nucleus. Ma'am, nucleus के बाद क्या दिखा है? Penetrates. Penetrates into the egg. The nucleus of the sperm fuses with the nucleus of the egg. This act of fusion is called fertilization. ठीक है, कोई डाउट है इसमें सिद्धार्थ, श्वेता? No, miss. ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म रिलीज होंगे, सारे स्पर्म स्विम करते हैं, उनके पास, सबके पास पूंछ होती है, तो वो स्विम करते हैं, बट सारे के सारे का कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक ही होता है। अगर एग होगा
एग को जाके फर्टिलाइज करेगा और उसके बाद क्या होगा, उसकी टेल वेल सब जो है वो पहले ही हट जाएगी और उसके बाद फ्यूजन के बाद वो जो है दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे। दैट इज फ्यूजन का एक्ट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अभी इम्प्लांटेशन पढ़ो। मैं हाँ, the fertilized egg zygote soon starts developing, and by the time it reaches the uterus, a small ball of numerous cells is already formed. The embryo forms a pit in the wall of the uterus and gets fixed in it. This natural way of fixing of the embryo in the wall of the uterus is called implantation. This process the state of pregnancy. ओके। तो अब जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब जाइगोट फॉर्म होता है और वो मदर्स बॉडी में स्टिक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन होने के बाद जो मदर होती है उसको हम बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. फाइन, ओके। श्वेता, रीड बेटा ग्रोथ। Growth means any type of irreversible increase in the size and weight of an individual during the process of development. In the growth process, a single-celled fertilized egg, example, either a zygote, divides and redivides to form a cluster of cells. This division is accompanied by another process, specialization of cells. The specialization of cells leads to formation of different parts of the body. This whole process is called differentiation. This process also gives rise to various tissues and further various organs and organ systems. Thus, the zygote grows into an embryo. The embryo soon develops into a baby. By the end of 5 weeks of pregnancy, the embryo is in quite an advanced stage. During this period, the heart and the circulatory system are formed. After 2 months, limbs are also formed. देखो, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होता है, आपका हेड बनेगा, हैंड बनेगा, लेग्स बनेंगे, सब बनेगा। और जब 5 वीक्स हो जाएंगे ना, तो आपका हार्ट भी बन जाएगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी बन जाएगा। और तो जब ये सब बनेगा तो हार्ट क्या है, पंपिंग शुरू कर देगा, तो आपको बीटिंग सुनाई देगी। एंड योर लिम्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड आफ्टर दिस, मतलब आपके हाथ पैर जो है वो बड़े बड़े अच्छे से फॉर्म हो जाएंगे once the heart is formed. अच्छा, अब सिद्धार्थ बर्थ रीड करो बेटा। The full term of the development of an embryo in the uterus is called gestation. In humans, it lasts for about 280 days. At the time of birth, the baby is pushed out with the head oozing out first by the powerful contractions of the muscles of the uterus through the vagina. ओके, सो अगर पूरे 9 months मतलब 280 डेज या 40 वीक्स तक अगर बेबी मदर के अंदर रहता है तो उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और जब सब बेबी जब बाहर आता है वजाइना के थ्रू, तो वो सबसे पहले क्या बाहर आता है, उसका हेड बाहर आता है। और जब हेड बाहर आता है तब वो यूट्रस जो है उसको जोर से धक्का मार के बाहर निकाल देता है, मसल्स यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड थ्रू दैट बेबी इज कमिंग आउट एंड इट इज प्रोवाइडेड विद द बर्थ। अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so this is how the baby is born. अच्छा, मिस हाँ, मिस अगर बेबी 9 months के थोड़ा सा पहले बर्थ हो जाए तो क्या होगा? तो थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए उसको फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में रखते हैं। ठीक है, अगर मैम, हाँ, मैं अगर 1 sperm से अगर एग मिलता है तो वह एक बेबी होता है, तो मैम हाँ, ट्विन कैसे होते हैं? ट्विंस अगर 2 एग्स होंगे, 2 स्पर्म्स होंगे, 2 एग्स को 2 स्पर्म्स लगेंगे तो ट्विंस हो जाएंगे।
Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है। ट्विंस वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि गलती से वैसे हमेशा एक ही एग रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में, कभी भी दो रिलीज नहीं होते, बट बाय मिस्टेक कुछ वजह से कभी दो रिलीज हो गए, और उस टाइम अगर स्पर्म इसके अंदर आता है तो दोनों एग्स को दो अलग अलग स्पर्म फ्यूज करेंगे, और जब दो अलग अलग स्पर्म फ्यूज करेंगे तो 2 बेबीज हो जाएंगे, ट्विंस हो जाएंगे। और एक और ये हो सकता है कि जब जाइगोट इम्प्लांटेशन होती है ना, जब इम्प्लांटेशन हुआ और जाइगोट ये जो फॉर्म हुआ इम्प्लांटेशन के टाइम, कई बार होता है कि ये है ना टूट जाता है बीच से और दो जाइगोट बन जाते हैं इससे। जैसे हमने फिजन में देखा ना, फिजन वाले में, बाइनरी फिजन, Yes, miss. वैसे तो कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है और ये दो हो जाते हैं। तो ऐसे जो बेबीज होते हैं ना वो एकदम एक जैसे दिखता है, जो आइडेंटिकल ट्विन सुना है आप लोगों ने, Yes, miss. जो एकदम एक जैसे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कौन सा। ठीक है, सो ऐसे भी ट्विंस फॉर्म होते हैं। और कोई डाउट? नथिंग? No, miss. Okay, fine. So what you have to do is in homework is read the chapter thoroughly and आप इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे? Yes, miss. एक्सरसाइज अगर मैं करने को दूंगी तो कर लोगे? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, अच्छा मैं आपके साथ अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, शॉर्ट आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फाइन। Distinguish between the following pairs of terms: egg and sperm. एग एंड स्पर्म के बीच में क्या डिफरेंस है? एग किस में से निकलते हैं? Female. हाँ, फीमेल में से निकलते हैं बेटा। देखो, एग जो है वो ओवरी में से आता है, स्पर्म कहाँ से आता है? टेस्टिस में से आता है। एम आई राइट? Yes, miss. हाँ, वो लिख सकते हो आपके, वो ओवरी किस में, क्योंकि वो फीमेल का पार्ट है और ये मेल का पार्ट है, ये लिख सकते हो आप। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बताओ। Only one parent plant is involved, or only one parent is involved ओके, इन animals. In asexual reproduction, only one parent is involved. In sexual reproduction, both the parents are involved. 2 parents are required. That means male and female is required. Very good. अच्छा, budding and regeneration. budding में जो न्यू प्लांट ग्रो होता है, न्यू प्लांट ग्रोज ऑन पेरेंट, सॉरी प्लांट नहीं, एनिमल, सॉरी हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। न्यू एनिमल grows on parent's body and when it is
fully developed, then only it is detached. जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तब वो अपने पेरेंट से अलग होता है. बट रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में हम पूरा कट कर देते हैं. एम आई राइट? Yes, miss. ठीक है, तो आप मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ. फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट अगर आपको आता है तो आप लिखना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला काम करेंगे. फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन सीधे सीधे आपके बुक में दिया हुआ है बेटा. ठीक है. फॉर फर्टिलाइजेशन, द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और इम्प्लांटेशन क्या होता है? द नेचुरल वे ऑफ फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. मतलब ये जो पर्टिकुलर यूट्रस के अंदर जाके फिक्सेशन होता है वो नेचुरली अगर होता है तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं. ओके, स्टेट द रीजन व्हाई टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्क्रॉटम. टेस्टिस बाहर क्यों है बॉडी के? Because it has a temperature 2 to 3 degree lower than the body. यस, एक्चुअली उसको स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं और स्पर्म को टेम्परेचर कम चाहिए. ठीक है, 2 to 3 डिग्री हमारी बॉडी से कम चाहिए, इसलिए वो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं. Why it is important that a very large number of sperm should be present in semen? क्यों ऐसा है कि बहुत सारे स्पर्म्स होने चाहिए? Because all may not reach the egg cell. Very good. All of them are not successful to reach the egg cell. So one of them should reach over there. Very good. List the structures in the correct sequence through which sperm must pass through the they are produced in the testes to the time when they leave the urethra. अच्छा, स्पर्म जब मेल बॉडी से बाहर आते हैं वहां से उसके बाद उनका सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस क्या है? दे विल मूव इनटू वजाइना, वजाइना से जाएंगे यूट्रस में, यूट्रस से जाएंगे फैलोपियन ट्यूब्स में. ठीक है ना? Oh, अच्छा, list the structures in the correct through which the sperm must pass through the time they are produced in testis. अच्छा, testis से start करना है, sorry. टेस्टिस. अच्छा, एक और चीज बेटा, अगर TES है तो प्लूरल है, 2 टेस्टिस की बात हो रही है. अगर TESTIS है तो सिंगुलर है, याद रखना. Yes, miss. ठीक है. Yes, miss. तो टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं. टेस्टिस से निकल के जाते हैं एपिडिडिमिस में. एपिडिडिमिस से कहाँ जाते हैं? स्पर्म डक्ट में. स्पर्म डक्ट से फिर उनको कौन कौन मिलते हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड. ये सभी से लेने के बाद ये आ जाते हैं यूरेथ्रा में. अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्लियर? Yes. हाँ, यूरेथ्रा से वो जो स्पर्म्स है वो यूरेथ्रा से लीव करते हैं मेल बॉडी को. हाँ, मेल्स में यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए एक ही रास्ता है बेटा. यस मिस. ठीक है, बॉडी से बाहर आने के लिए एक ही रूट है.
उसी से यूरिन भी निकलता है, उसी से स्पर्म भी बाहर आएगा। Yes, miss. ठीक है, फीमेल्स में चीजें अलग है, मेल्स में वन ही है। अंडरस्टूड दिस? Yes, miss. ठीक है, तो इतना जितना आपसे होता है उतना ट्राई करना, नहीं तो छोड़ देना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, miss. Okay, so that is what you have to do. Just read the chapter first before completing the exercise. पहले चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना बेटा। Got it? Yes, miss. Any doubts till here? No, miss. Good. So you can leave. Good afternoon, miss. Thank you, miss. Okay beta, goodbye.